begins with a thoughtful plan, a mix of equity, some debt, a little gold. But over time, that plan gets pulled in different directions. Headlines, market movements, even peer conversations, they all add noise. And slowly, the original idea of diversification can fade into the background. In this episode of Nivesh Pe Charcha, the Diversification Playbook, we explore the theme, what stops investors from staying diversified and what can help. Today we have with us Mr. Nipun Madan, Senior Consultant at 3i FinServe LLP, a firm that seeks to combine investment expertise with integrity and insight. With over 2 decades in the financial services industry, Nipun aims to help investors design strategies that stay grounded across changing market environments. His work spans portfolio construction, macro strategy, and investor education, all with the goal of turning financial decisions into informed, purposeful action. He joins us to share what makes diversification difficult to stick with and what might make it easier to sustain. What stops investors from staying diversified and what can help? इसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं मिस्टर निपुन मदान से. निपुन, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए. गुड आफ्टरनून. सो मेनी इन्वेस्टर्स जब वो शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी की तो उनका इंटेंशन सही होता है, बट ओवर टाइम उनका जो पोर्टफोलियो है वो वन साइडेड सा दिखने लगता है. व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंस? इसके पीछे बिहेवियरल और स्ट्रक्चरल रीजंस हैं बेसिकली. व्हाट सिंस माय 20 years of experience, I can tell you that there are few reasons. Intention अच्छा होता है when people start investing, whether it's in invest or an advisor also. They want a diversified portfolio. But क्या होता है कि कुछ points होते हैं, जैसे बड़ा ही common सा emotional biasness है, जैसे recency biasness. उसमें क्या होता है कि we start extrapolating. जो अभी हमारे साथ हो रहा है उसको extrapolate करते हैं, तो investors what they do basically start chasing the returns. So what happened basically post-COVID that equity started doing well. So everyone started investing into equities and वो पोर्टफोलियो पूरा स्वेल हो गया इक्विटी की तरफ. और दूसरा रीजन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा होता है कि दे डोंट नो हाउ टू रीबैलेंस. इट इज वेरी टफ. हम लोग बोलते हैं, जैसे अब ICFA में बोला गया कि वी नीड टू रीबैलेंस इट एनुअली और maybe in 2 years, but it is very tough manually to do rebalancing. वो एक क्या ना, एक अट्रैक्शन भी हो जाता है. जिन फंड्स ने अच्छा किया उसकी तरफ हम लोग अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको सेल करना. So you get emotionally attached to your funds. और तीसरी चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हमारी मार्केट में ना बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग सी है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग 5 फंड्स इक्विटी फंड्स ले लेंगे तो हम डाइवर्सिफाई हो गए. बट पीपल डोंट रियलाइज बेसिकली दैट एवरी इक्विटी फंड इज हैविंग 40, 60, 70 स्टॉक्स और आपस में सारे स्टॉक्स मोस्ट ऑफ देम आर कॉमन. सो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैन बी अ रीजन. सो मुझे लगता है ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिसके कारण पीपल मिस इंटरप्रेट व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन और वो उसको कर नहीं पाते. तो ऐसे में हाउ कैन वी एक्सप्लेन टू समबडी कि ट्रू डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अलग अलग एसेट क्लासेस को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना, ये नहीं कि आप सिमिलर फंड्स अलग अलग तरीके के या डिफरेंट AMC से अक्यूमुलेट किए जा रहे हैं. सो बेसिकली पीपल नीड टू, इसकी एक मैं काफ़ी अपने इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ कि जैसे मल्टीविटामिन होता है, उसके अंदर सारे क्यों सब आज की डेट में जो नया जनरेशन है वो मल्टीविटामिन को पसंद करता है क्योंकि उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन और सारे विटामिन होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 टाइप के मैंगोज ले लोगे तो यू विल नॉट गेट ऑल न्यूट्रिशन. यू नीड टू हैव मैंगो, एप्पल्स, बनानास और vegetables to get a full nutrition. So people gets confused. तो उसी तरीके से हमारे एसेट क्लास में भी होता है. What happens basically that product count को हम diversification समझने लगते हैं, which is not. Diversification is all about having multiple asset classes, equity, debt, gold, international assets, REITs. So we need to understand. तो उस true diversification is where जहाँ पे asset classes के बीच में correlation आपस में कम हो या negative हो. Negative correlation वाले तो कम मिलते हैं, but जिन asset classes में कम correlation होगा, basically that is a real diversification. What kind of market behavior makes investors second guess diversification? भले ही उन्होंने long term की planning की हो, तो क्यों होता है ऐसा? बेसिकली ये सबके साथ होता है, नॉट ओनली विद इन्वेस्टर्स. मतलब मैंने देखा बीइंग इन AMC एंड नाउ ऑन दिस साइड, ये सबके साथ हो जाता है. तो एक वो फोमो आ जाता है सबके अंदर. इवन एडवाइजर्स के अंदर भी फोमो आ जाता है यार कि हमारा डिसीजन सही था कि नहीं सही था. सो यहाँ पे जब एक
कोई एसेट क्लास के अंदर रैली आती है तो पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि यार ये मैंने सही डिसीजन लिया है कि नहीं डाइवर्सिफिकेशन का। और कई बार ऐसा होता है ना कि एसेट क्लासेस जैसे कि अपने डेट हो गया, गोल्ड हो गया, इनके अंदर बड़ी लंबी बियर मार्केट सी आ जाती है, बड़े फ्लैट से हो जाते हैं। फिर गोल्ड में भी हमने देखा बीच में कुछ ऐसा टाइम आया था जो 3-4 साल बिल्कुल फ्लैट रहा था, और डेट में भी 4-5% का रिटर्न। तो पीपल स्टार्ट थिंकिंग यार ये तो रिटर्न देता ही नहीं है। तो ये 2-3 रीजंस हैं। बट क्या ये प्रैक्टिकल है फॉर मोस्ट इन्वेस्टर्स कि वो डाइवर्सिफिकेशन को मैनेज कर सकें अक्रॉस मल्टीपल क्लासेस ऑन देयर ओन? थ्योरेटिकली तो है ही, इट इज पॉसिबल, बट प्रैक्टिकली इट इज वेरी टफ। पहले भी मैंने आई एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि क्या होता है कि यू स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद योर गुड फंड्स और स्टॉक्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेल। और आपको जब मैनुअली रीबैलेंसिंग या मल्टी एसेट में जाना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स की कोरिलेशन कैसा चल रहा है, इंटरेस्ट रेट साइकिल क्या है, वैल्यूएशन क्या है, अभी ग्रोथ चलेगा कि वैल्यू चलेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। सो इट इज वेरी टफ प्रैक्टिकली फॉर ए रिटेल इन्वेस्टर और a normal investor to do this rebalancing or doing multi asset allocation investment. It is very tough. So in that context, मैंने देखा नहीं आज तक किसी को प्रॉपरली करते हुए। ओके, तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हाउ डू यू व्यू द रोल ऑफ अ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, स्पेशली उन लोगों के लिए जो दे वांट टू स्टे ऑन द ट्रैक विदाउट रिएक्टिंग टू मच, जैसे इन्वेस्टर्स के लिए? सो बेसिकली जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हैं और ये जो स्ट्रेटजी है, इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन और रीबैलेंसिंग हो रहा है। तो जिस हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि वी नीड टू बी ए डिसिप्लिन इन्वेस्टर टू बी ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर, so multi-asset allocation is doing that only. It is automatically diversifying and rebalancing. और कैसे हो रहा है? Because they are investing into equity, debt, gold under one roof only. और valuations पे they keep on changing. Fund manager knows कि भैया अभी valuation बढ़ गया तो they will reduce the equity portion. और उनको लगता है कि नहीं अभी debt में ज़्यादा रिटर्न नहीं बनेगा तो they will increase the equity. और बेस्ट पार्ट इसके अंदर क्या ना, बिहेवियरल रिस्क खत्म हो जाता है। और चौथी चीज मुझे लगता है कि टैक्स एफिशिएंसी अच्छी है, क्योंकि आप खुद अगर अपना इन्वेस्टमेंट मल्टी एसेट करोगे तो आपको हो सकता है उतनी टैक्स एफिशिएंसी नहीं मिले, क्योंकि आप बेचोगे, खरीदोगे, टैक्स पड़ेगा। तो एक टैक्स की एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिलती है। थैंक यू सो मच हमारे साथ आपके इनसाइट्स शेयर करने के लिए। विद दैट इट्स अ रैप। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एवरीवन। Thank you. As Nipun Madan shared, the challenge with diversification isn't just about knowing what to do. It's about staying with it. Over time, portfolios often shift with emotion rather than intention. And without a structured approach, even the best laid plans can slowly drift away from their original purpose. In that context, Grow Mutual Fund has launched the Grow Multi-Asset Allocation Fund, which seeks to invest across equity, debt, and commodities like gold and silver within a single portfolio. This fund aims to provide investors with a framework to stay diversified across asset classes, especially during periods of uncertainty, without needing to manage each component separately. The NFO is open from 10th to 24th September. Please consult your financial advisor before investing and read all scheme-related documents carefully. As we wrap up, remember, diversification isn't just about spreading investments, it's about holding on to the original intent. And sometimes a thoughtfully designed structure can help us just do that. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.